હું આનંદમાં રહીશ, હું હસતો રહીશ કે હસતી રહીશ, તમારું રોતલ મોઢું સેલ્ફી મારો, પછી જુઓ પોતાનું મોઢું, તમને થશે આ કેવું છે મોઢું. પોતાને જોવું નહીં ગમે. તમને બીજાનું મોઢું હસતું જોઈએ છે કે રડતું? હે? બીજાનું મોઢું હસતું જોઈએ છે ને, તો પેલા પોતે હસશું તો બીજા હસશે કે નહીં? હે? બરાબર. આપણે ત્યાં કોક આવ્યું ને મોઢું ચડાવ્યું, આવી ગયા પટકાણા, કીધા કહેતા પણ નથી, ગમે ત્યારે આવી જાય, બાપાનો માલ માથે પડે. અને પહેલાના જમાનામાં અતિથિ દેવો ભવ, કોઈ આવે તો ખુશ ખુશ થાય, અરે તમે આવે, આવો આવો પધારો, આવો પધારો, જમીને જવાનું છે ને રોકાજો 2-3 દિવસ. હે? ઓળખીતા હોય કે ન ઓળખીતા હોય, અતિથિ દેવો ભવ આ સંસ્કૃતિ હતી. શેના માટે? ધેટ વોઝ લો ઓફ નેચર. આ દુનિયામાં મારો કોણ સગો છે? બધા જ સગા છે. હું જેને ઓળખું છું એ સગા છે એવું નથી. જે મને મળ્યો એ સગા છે. હવે તમને એક વસ્તુ કહું, સગા તમે કોને કહો છો? ને તમારી સગાઈ કેટલી જૂની? સગાઈ તમે સગા કોને કહો છો ને સગાઈ કેટલી જૂની? ને એને પકડીને બેઠા છો. કોને સગા કહો છો? આપ કિસકો हमारे बोलते हो? हाँ? माँ बाप, भाई बहन, स्टोरी खत्म. और बच्चे, संतान. माँ बाप, भाई बहन और बच्चे, संतान. आपका स्टोरी पूरा खत्म. આ મારા સગા આજની તારીખમાં. આજની તારીખમાં આટલી જ સગાઈ યાદ છે. હવે બોલા બીજા બધા તો ખાલી લગ્ન વખતે યાદ આવે અને આવું વાસ્તુ કરવું હોય ત્યારે યાદ આવે, બાકી કોઈ યાદ આવતું બરાબર ને. અને ઈ આવી ગયા તમને કીધા વગર. ફોન તો કરવો જોઈએ ને. તમને ખબર છે અમારે હવે તમારે લીધે અમારે અહીંયા રોકાવું પડશે. એક કામ કરો, તમે જ રસોઈ બનાવી લેજો, અમે તો આ નીકળ્યા. હા, અમારી તો બીજી જગ્યાએ અપોઇન્ટમેન્ટ છે. આવું થાય છે કે નહીં? અરે બોલો. ક્યાં ગયું અતિથિ દેવો ભવ? બરાબર છે. હવે સામેવાળાને એમ થયું કે આપણે ક્યાં આવ્યા, અહીંયા આનંદ માણવા આવ્યા હતા, એની સાથે એને સરપ્રાઈઝ આપવા આવ્યા હતા. આ મારું સરપ્રાઈઝ નું ડરપ્રાઈઝ થઈ ગયું. આજકાલના છોકરાઓ સરપ્રાઈઝ કરે છે. અરે ભારી પડે છે સરપ્રાઈઝ. હે? બર્થડે વિશ કરે રાતના 12 વાગે, 12:01 બર્થડે વિશ કરે. એ મૂર્ખના જામ. આપણે ત્યાં ભારતની અંદર પદ્ધતિ શું છે ખબર છે? સૂર્યોદય થાય એટલે દિવસ ઉગ્યો કહેવાય. સૂર્યોદય થાય એટલે દિવસ ઉગ્યો કહેવાય. બધા માટે સાર્વજનિક દિવસ. વૈયક્તિક દિવસ 4 વાગે પર્સનલ. એટલે 4 થી 7 તમે તમારું પોતાનું જીવન જીવી શકો. 4 થી ઉઠીને 7 વાગ્યા સુધીમાં આ બધું પર્સનલ કામ કરવાનું. પછી તમારો દિવસ શરૂ થાય સાર્વજનિક, એટલે બીજાઓ માટે. બીજાને મળવું હોય, વાત કરવી હોય, ફોન કરવો હોય તો 7 વાગ્યા પછી ભગવાને કીધું છે. વિશ કરવું હોય તો એ 7 વાગ્યા પછી, એટલે મીન્સ સૂર્યોદય પછી. ને આપણે હવે શું કરે? 12 થી 3 વાગ્યા સુધી બર્થડે અને પછી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી સૂઈ જાય. હે? અને જાનવર કહેવાય. જાનવરે હારા. પશુ પક્ષી કેવા રાઈટ ટાઈમે તમને ઉઠાડે. સંગીત. હા, કેવું સંગીત શરૂ થઈ જાય?
એમને ખબર પડે કે આ બસ હવે સૂર્ય ઉદય થવાનો છે એટલે ચૂ ચૂ ચા ચા મ્યુઝિક ચાલુ એનું. આખી પ્રકૃતિ લો ઓફ નેચર પ્રમાણે ચાલે છે. માણસને ગધેડાને છોડીને. એક માણસ જ આપણે ગધેડાને ગધેડો કે જે ગધેડો કે તું છે ગધેડો, હું નથી. તું જો હું તો મજેમાં છું, હું તો મોજમાં છું. ગમે એટલું વજન ઉપાડવાનું હોય તો ઉપાડી લઉં છું, મને કોઈ દુઃખ નથી થતું. ને તને કેટલું દુઃખ થાય છે એક કામ કરવા માટે? મોઢું બગાડી બગાડીને કામ કરે છે, દિલ બગાડી બગાડીને કામ કરે છે. આ બધું મારા ઉપર છોડી દીધું. આવે જ ને એવું તકલીફ આવે જ ને. બધું મારે જ કરવાનું. આને કહેવાય ગધેડો. જે રડી રડીને કામ કરે એનું નામ? બોલો, આપણે કોણ છીએ, માણસ કે ગધેડો? જે માણસ રડી રડીને કામ કરે એનું નામ ગધેડો. એમ માણસે કીધું. ગધેડો મજામાં છે, એને કોઈ વાંધો નથી. માણસે ગધેડાનો રોલ અપનાવી લીધો. બરાબર છે. તો હવે ગધેડાની જેમ જીવવું છે કે માણસ બનીને जीवવું છે? कैसे जीना है भैया? गधे के जैसे जीना है कि इंसान के जैसे जीना है? तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हम समझा रहे हैं आपको. क्या क्या समझाया आज अभी तक? आंख खुलने के साथ इन सातों की कृपा लेनी है और चार को आशीर्वाद देना है. सातों की कृपा लेनी है, चार को आशीर्वाद देना है. क्या ये कर सकते हो आप? कृपा किससे लेनी है? ईश्वर, सिमंदर स्वामी, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवंत. इनके तरंग और वाइब्रेशंस देखो, हमारे सबके अंदर वाइब्रेशंस है. इनके वाइब्रेशन ऐसे हैं कि अगर हम उसको रिसीव करें, आप सबके अंदर टीवी है, टीवी की जैसी शक्ति है. टीवी क्या करता है? वाइब्रेशन खींचता है टावर से, बराबर है, और पिक्चर दिखाता है. आपके जीवन में जो पिक्चर है ना, अगर वो पिक्चर को बदलना है तो सिमंदर स्वामी के तरंगों को पकड़ो, तो आपके शरीर में से रोग भोग सब निकलते जाएंगे. आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सही हो जाएगी, सद्बुद्धि हो जाएगी. आपकी भावना, दिल बिगड़ गया है तो सही हो जाएगा. आपके धन संपत्ति में गड़बड़ आ गई है तो सही हो जाएगा. आपके संबंधों में गड़बड़ आ गई है तो सही हो जाएगा. अभी आप लोगे कि नहीं? इनकी कृपा लेनी है कि नहीं? अरे बोलो, लेनी है ना? फ्री में मिलती है. इनकी कृपा फ्री में मिलती है, बाकी सब पेमेंट लेते हैं. बाकी सब आज नहीं तो कल आपको चुकाना पड़ेगा. ये 7 हस्तियां फ्री में देता है, सब कुछ फ्री में. नाम बोलू? ईश्वर, लॉ ऑफ नेचर. लॉ ऑफ नेचर ने मुझे माँ या बाप बनाए हैं, बराबर है. लॉ ऑफ नेचर मेरी पूरे शरीर को चला रहा है. लॉ ऑफ नेचर मेरे वातावरण को मधुर बना रहा है. लॉ ऑफ नेचर मुझे हर जगह सहायता कर रहे हैं, बराबर है. तो इनकी कृपा लोगे कि नहीं लोगे? तो पहले है ईश्वर, दूसरे है सिमंदर स्वामी. हमारे अंदर जितनी गड़बड़ है उनके वाइब्रेशन आने से हमारे अंदर की तरंग बदल सकते हैं, वाइब्रेशंस बदल सकते हैं. अगर हमने ये काम किया तो समझ लो आपकी बीमारी जाने का शुरू हो गया. करना है, ये फ्री में मिल रहा है, तो उनके तरंग रिसीव करो. हे सिमंदर स्वामी, कृपा करो, कृपा करो. आप खाली आपको बोलना है, बाकी मैं जो समझा रहा हूं वो नहीं बोलना है. आपको खाली बोलना है कृपा करो. उनको आंख बंद करके उनको दृष्टि में लाना है. हाँ, सिमंदर स्वामी देखे नहीं है तो दर्शन कर लेना प्रीतिबेन के घर में, और आप इच्छा हो तो आपके घर में भी आप पधरा सकते हो. हाँ, अगर घर में आ गए ना जिसके, कल्याण कल्याण भवतु 24 घंटों आते जाते भगवान दर्शन देंगे.
आते जाते जितनी बार आप घूमोगे फिरोगे आपको दर्शन देंगे, और दर्शन देंगे तो आप कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे तो सुधर जाओगे। समझ में आया? खाली आपका नहीं, आपके घर में बच्चों का, बुजुर्गों को, सबको सबको कृपा मिलेगी, सबको कृपा मिलेगी। ऐसा चाहिए कि नहीं? तो सिमंदर स्वामी की कृपा, सर्व जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंतों की कृपा, सर्व सिद्ध परमात्मा की कृपा, सर्व साधु परमात्मा की कृपा, सर्व माता पिता की कृपा, सर्व गुरुजन और सदगुरु भगवंतों की कृपा, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सर्व जीव और अजीव की कृपा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बस इस प्रकार कृपा मांगनी है सातों की। एंड सी द चेंज। आपके अंदर बदलाव आए बिगर रहेगा नहीं। आप कोई भी समस्या से जूझ रहे हो, तकलीफ में हो, बस ऐसी कृपा मांगो। जितनी तकलीफ ज्यादा उतनी कृपा ज्यादा मांगो, हर घंटे मांगो। अपने बच्चों को भी सिखा दो, बच्चों को सिखा दोगे तो उसका जीवन सुधर जाएगा। आपका तो जो हुआ है वो निकल गया, निकल गया। बच्चों को, अगर आप बच्चों को रियली चाहते हो तो अभी से ये सिखा दो। आप खुद भी करो और ऐसे सिखा दो। और जो मैंने कहा, भगवान को घर में लाओगे तो इसके जैसा कोई कल्याण का कार्य नहीं है। पधराओगे तो आपको कृपा मिलती रहेगी 24 घंटों। तो आंख खुलने के साथ है सातों की कृपा और चार को आशीर्वाद। आशीर्वाद क्यों? हर इंसान के पास आशीर्वाद देने की क्षमता है, शक्ति है। हम सबका उपयोग करते हैं, किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं। बोला है क्या? है? सांस लेते हैं तो ओ, आप वायु को थैंक यू बोला? नहीं बोला है, नहीं बोला है ना? खाना खाते हो, उस जीवों ने आपके लिए बलिदान दे दिया, आप उन्हें उनको थैंक यू बोला? जिसने बनाया उसको थैंक यू बोला? जिसने आपको ये सब प्राप्त कराया उसको थैंक यू बोला? कितने बदतमीज है हम। फिर कहां से शांति आएगी, सुकून आएगा? वी डोंट हैव हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू। है क्या थैंक यू बोलने की आदत है? नहीं है। बस आज से शुरू कर दो। ये सात की कृपा मांगो और चार को थैंक यू बोलना है। सबसे पहले किसको बोलोगे? सर्व जीव अजीव। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, सर्व मनुष्य, स्वर्ग के जीव और नरक के जीव, सबको आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग्स। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। आप जल्दी जल्दी मनुष्य बनकर भगवान के मार्ग पे आकर भगवान बनो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। एक बात समझ लेना, जो आशीर्वाद दोगे वो आपका बन जाएगा। आशीर्वाद दोगे, बद्दुआ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये लॉ ऑफ नेचर है। तू जो देगा वो अनेक गुना मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तू जो देगा वो अनेक गुना। तो दिन की शुरुआत किससे करनी है? आशीर्वाद से। पहले कृपा लो, सातों की कृपा लो और चार को आशीर्वाद करो। सर्व जीव अजीव को आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद देना है? आप जल्दी जल्दी मेरे जैसे इंसान बनो, मनुष्य बनो, भगवान के मार्ग पे आओ और आप सब मुक्ति को पाओ, आप सब मुक्त बनो। इतना ऐसा जो आशीर्वाद आपने दे दिया, रोज देते रहोगे। दिन में 3 टाइम देना है मिनिमम। कृपा लेनी है, आशीर्वाद देना है, मिनिमम 3 टाइम। आपके जीवन में तकलीफ है, तकरार है, प्रॉब्लम है तो हर घंटे करो। 2 मिनट लगेगा, सिर्फ 2 मिनट्स, आपके जीवन के अंदर बदलाव आ जाएगा। ये कौन लाएगा? ईश्वर, लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत के कानून, ये नियम है, सबके ऊपर लागू पड़ता है। आप कौन से धर्म को मानते हो, जो भी धर्म को मानते हो, नो प्रॉब्लम। आप जैन हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ये सात आपको
धर्म से नहीं मानते, आप इंसान हो उतना मानते। समझ में आया नहीं आया? આવ્યું કે નહીં સમજમાં ભાઈ? એટલે આ સાતોની કૃપા લો અને ચારને આશીર્વાદ આપો. સર્વ જીવ અજીવ. પછી જે તમને જ્ઞાનદાતા છે ગુરુજન અને સદગુરુ ભગવંત, જે તમારી રક્ષા કરે છે, તમારા કરતા એને ચિંતા વધારે છે તમારી, એનું નામ સદગુરુ. અને ગુરુજન જે જ્ઞાન આપે એ ગુરુ. તો ગુરુજન અને સદગુરુ आशीर्वाद आपो. थैंक यू, तमे मारा जीवन में हमेशा रहजो. आप हमारे जीवन में हमेशा रहना. मैं कुछ भी बदतमीजी करूं, मैं हूं ही बदतमीज, और मैं ऐसी बदतमीजी कर्म के कारण करता हूं. कर्म के कारण करता हूं क्योंकि मेरा खिसक जाता है. आत्ता माजी सटकली, वो बार बार सटकती है. ऐसी कृपा करो मुझ पर हे प्रभु कि मेरी सटके तो आप मुझे संभाल लेना. सटकता है तो मेरे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन मुझे संभाल लेना आप. मुझे, मैं ट्रैक से बाहर जाऊं तो भी मुझे वापस आपके मार्ग पे ले आना. ऐसे वचनों की प्राप्ति मिल जाए. हाँ, करना है कि नहीं? उठीने जे लोग जॉइन नहीं थिया यूट्यूब में ने व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन थई जजो. પોતાનું નામ અને નંબર લખાવી દેજો એટલે તમને સતત મળ્યા કરશે આ બધું. હા, હમણાં તો તમે સાંભળો છો, હમણાં સારું લાગશે, પણ પછી ભૂલી જશો. જેવા અહીંયાથી બહાર નીકળ્યા ને, ઓલું પેટ ભરાઈ ગયું ને એટલે ભૂલી જશો. ભૂખ્યા છો ત્યાં સુધી યાદ રહે. એટલે જ બધા કહે છે કે ઉપવાસ કરો, યાદ બરાબર રહે. હા, उपवास करवाથી બે ફાયદા થાય. શરીરને શરીર કી શરીર સારું રહે અને યાદ બરાબર રહે. જે હવે समझ में आया? तो पहला आशीर्वाद किसको? सर्व जीव अजीव. दूसरा गुरुजन और सदगुरु भगवंतों को. तीसरा आशीर्वाद माता पिता को. माता पिता को. आज हम जो भी हैं इस दुनिया में आए, हमको कौन लाए? हाँ, आए तो हम. पिता, माता पिता माध्यम है. वो जन्म नहीं देते, हम जन्म लेते हैं. वो जन्म देते नहीं है, हम जन्म लेते हैं. ये ध्यान में रखना. लेकिन हम जन्म लेने के बाद ईश्वर ने उसको सारा कुछ ऐसा अंदर भर दिया सॉफ्टवेयर कि वो हमारी चिंता करते जीवन भर, जब तक जिंदा रहे तब तक. बोलो, आप सब माँ बाप हो? हैं? आपके बच्चे जब तक जिंदा है और या आप जिंदा हो तब तक आप उसी की चिंता करते हो, उसी के लिए जीते हो. बोलो, ये किसने दिया है सॉफ्टवेयर? ईश्वर सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको. कौन सा सॉफ्टवेयर? ईश्वर सॉफ्टवेयर. कोई स्कूल कॉलेज में सिखाया किसी ने? इसका कोई क्लासेस था? नहीं ना. इसका कोई ग्रुप है, कोई देरासर है, कोई उपाश्रय है, इसका कोई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है? नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ है. में मंगल तेरे नाम, जीवन में मंगल तेरे नाम, रस का हर स्वाद तेरे नाम, रस का हर स्वाद तेरे नाम. मौन या संवाद तेरे नाम, मौन हो या संवाद तेरे नाम. मिलता है आराम तेरे नाम, मिलता है आराम तेरे नाम. मेरे अरमान तेरे नाम, मेरे अरमान तेरे नाम. पे हर जंजीर तेरे नाम, पे हर जंजीर तेरे नाम, पे हर जंजीर तेरे नाम. बन जाए तकदीर तेरे नाम, बन जाए तकदीर तेरे नाम. दरिया ताहिर तेरे नाम, दरिया ताहिर तेरे नाम. अंतर की मौज तेरे नाम, अंतर की खोज तेरे नाम. बहते हैं चरण तेरे नाम, बहते हैं चरण तेरे नाम. चलते हैं चरण तेरे नाम, चलते हैं चरण तेरे नाम.
तेरे